अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद मंगरियो साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश हैं गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सक्खर। इस वीडियो के पार्ट 1 में सर हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश लेक्चरर BPS 17 के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, और इस वीडियो के पार्ट 2 में सर हमें गाइड करेंगे कि SPSC के जो लेक्चरशिप के इंटरव्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, उनका पैटर्न किस तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सर ज़ुबैर अहमद मंगरियो साहब की बनाई हुई जो स्लाइड्स हैं, जो कि इस लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको शो करना चाहता हूँ, ताकि उनमें से अगर आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो आप इसमें से नोट कर लें। Bismillahirrahmanirrahim. I am Zubair Ahmed Mangriho, Assistant Professor of English at Government Islamic Arts and Commerce College, Sakkar. I am in teaching since last 25 years, and I am thankful to Professor Nazir Ahmed Sheikh Saab, who invited me to have some chit chat or guideline regarding upcoming interviews for lecturership in English. So I agreed to him, consented to him to give my views, and I am obliged to him for such an opportunity to me. As you can say that all those students who are pressing or are preparing for interview for commission and it is their first time, they need certain guidance and mentoring. So we do organize such types of lectures and things. I myself do these things at my college, but since he has offered me to put these things in brief on screen so that other students who are not available at our college can also get benefit. So in this connection we have arranged this thing. So I'm thankful to him. Few things. For any success you need certain things. There is no one single one-liner success story. Okay, if you do this you will be successful. You need many things to be successful in an interview and grab a seat. Simply appearing in an interview is not a success. And there will be a lot of failure cases, but to get a seat out of those things you need certain elements, certain things which you have to get yourself or prepare yourself before the interview. The first and foremost thing which makes you a successful candidate is knowledge of your subject matter. If you are a student of English literature, you must know and grasp the English literature very well. This is the first and foremost thing. If you are related with Urdu, Sindhi literature, or for that matter any other language, you know that subject, you should know that subject very well. And or that goes same for economics and mathematics and all other subjects. So I will restrict myself to English subject. So the first thing that will be required from you while interview by the panel or by the group, that will be your subject know-how. That will be the prime thing or the first thing. And during say interview, they will assess you that how good you are at the subject of English literature. So I will give you a few tips. Though it takes 2 years to do MA English literature and even more time to grasp it, but I will suggest my students to at least follow
these tips they will make them helpful in a certain way. First thing is that clarity of thought will be assessed. Means whether you are very pretty much clear in your subject or not. The idea you are sharing regarding the literature, whether you are clear in your mind or not. That will be the first thing. To attain that goal, what you can do? The first thing is, as Socrates said, that beginning of wisdom is the knowing of terms. The terms of English literature should also be understood or must be understood. जैसा कि सुकरात ने कहा था कि जी जहानत जो शुरू होती है वो आपकी टर्म से शुरू होती है, यानी कि इस्तिलाहात जो सब्जेक्ट की है. इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आपका है तो इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह के इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, प्राइस हाइक क्या है, फला चीज क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की अपनी इस्तिलाहात होती है. अंग्रेज अदब की अपनी इस्तिलाहात है. सो यू हैव टू नो देम वेरी वेल. सबसे पहले तो सारी इस्तिलाहात आपको आनी चाहिए. तो पहला सवाल किसी सब्जेक्ट वाले से अगर कोई आइडियली पूछना चाहे, और कभी कभी पूछते भी हैं कि व्हाट इज लिटरेचर, सो इसकी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए मल्टीपल किस्म की. लैंग्वेज की डिक्शनरीज क्या कहती है, व्हाट इज लिटरेचर. लिटरेचर की डिक्शनरीज क्या कहती है, व्हाट इज लिटरेचर. और लिटरेरी फिगर्स ने, कार्लाइल ने क्या कहा है, कॉलरिज ने क्या कहा है, मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा है कि व्हाट इज लिटरेचर. थर्ड स्टेज पे आप वो सुनाएंगे और फिर आपसे वो फाइनली पूछेंगे आपका अपना परसेप्शन, वेयर आर यू. आपने लैंग्वेज की सुनाई डेफिनेशन, लिटरेरी डिक्शनरी की सुनाई, बड़े राइटर्स की सुनाई, ऑथर्स की, व्हाट इज योर ओपिनियन. तो फाइनली फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताते हैं कि इन माय ओपिनियन दिस इज इंग्लिश लिटरेचर, और फॉर दैट मैटर एनी अदर लिटरेचर. सो फ्रॉम हियर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब नेक्स्ट चीज आप क्या करेंगे जब आप लिटरेरी डिक्शनरी, अब मैं सजेस्ट करूंगा आपको डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म सॉरी बाय लॉन्गमैन, मार्टिन ग्रे की. वो इसलिए कि वो पैकेट वालों से ज्यादा कंसाइज है, बेहतर है, इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट है और रीडर फ्रेंडली है एज कंपेयर टू द अदर लिटरेरी डिक्शनरीज अवेलेबल इन द मार्केट. सो वहां से आप स्टार्ट करें, उसको फोकस करें. देन जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे, तो उसी लिटरेचर की डेफिनेशन के टर्म के अंदर एल फॉर लिटरेचर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि लिटरेचर इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ प्रोज एंड वर्स. तो आपको दो नए टर्म्स मिल गए. हमने कहा था कि विजडम शुरू होता है लर्निंग ऑफ टर्म्स से, तो दो नए टर्म्स उस डेफिनेशन में अंदर मिल गए कि व्हाट इज वर्स. तो फिर आप वी में जाएंगे एंड वर्स चेक करेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे. पी में जाएंगे, प्रोज को चेक करेंगे, उसकी डेफिनेशन, फिर उन डेफिनेशन में फर्दर नए टर्म्स आएंगे, फिर उनको फर्दर आपने आंसर करना है. वो जो मैंने पहले टाइम यूज किया था कि इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट. सो टू गेट दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट यू मस्ट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग. तो जब आप समझ के बोलते हैं तो फिर वो कैसे चेक होगा इंटरव्यू में. इंटरव्यू आपके आंसर में से नया क्वेश्चन निकालता है. अगर आपने लिटरेचर की डेफिनेशन में वर्ड वर्स यूज किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्स. और फिर जब आप वर्स की डेफिनेशन सुनाएंगे तो उसमें आप कहेंगे कि मीटर, तो नेक्स्ट सवाल होगा व्हाट डू यू मीन बाय मीटर. और फिर जब आप मीटर सुनाएंगे तो कहेंगे अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय आयम, ट्रॉची, स्पॉन्डे एंड थिंग्स लाइक दैट, स्ट्रेस सेलेबल, अनस्ट्रेस सेलेबल. तो ये डीपर प्रोब जो है, अगर आप 3-4 लेयर्स तक नीचे चले गए, इट मीन्स यू नो थिंग्स वेल. क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मीन्स इस बंदे का सब्जेक्ट पे ग्रिप है, अंडरस्टैंडिंग है. ये क्रैमिंग नहीं है, ये रोड लर्निंग नहीं है. रोड लर्निंग वाला फर्स्ट लेयर वाला आंसर तो दे देता है रटा मार के, बट ही कैन नॉट गो डीपर. तो वो कहता है कि ब्यूटी इज बट स्किन डीप. तो लिहाजा डीपर जब आप जाएंगे तो आप ये एम्पली प्रूव कर चुके होंगे कि यू नो द सब्जेक्ट वेल, अंडरस्टैंडिंग वेल. तो इसी तरीके से फिर जब आप लिटरेचर से जाएंगे, उसकी टर्म से जाएंगे, फिर पोइट्री में जाएंगे, फिर पोइट्री के अंदर रोमांटिक पोइट्री एक ब्रांच निकलेगी, क्लासिकल पोइट्री ब्रांच निकलेगी. देन अगेन डिक्शनरी विल बी द फर्स्ट
place where you can rescue yourself. लैंग्वेज की डिक्शनरी, लिटरेचर की डिक्शनरी, लिटरेरी डिक्शनरी, रोमांटिक पोइट्री को अंडरस्टैंड करें, क्या है रोमांटिसिज्म, क्या है क्लासिसिज्म, क्या है, ये टर्म से टर्म निकलेगा और आपको जैसे मांझा होता है ना पतंग का, उलझ जाता है, उसको सुलझाने के लिए एक सिरा पकड़ना होता है, फिर वहां से आप सुलझाते जाते हैं। तो हमने पहला सिरा पकड़ा था व्हाट इज लिटरेचर से, और अब सारा सब्जेक्ट खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा, रिवील होता जाएगा। फिर कहीं आएगा ड्रामा, तो फिर आप ड्रामा में फर्दर जाएंगे, कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, मेलोड्रामा क्या है, एक्ट क्या होता है, सीन क्या होता है, एंड थिंग्स गो ऑन एंड गो ऑन। इस ब्रीफ इंटरव्यू में सारा मैं नहीं इनकम पास कर सकता, सो आई कीप माई सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन थिंग्स। आइडिया आपको मिल गया कि करना कैसे है, तो फिर आप इसी तरीके से लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कवर करेंगे, प्रोज भी कवर करेंगे, आप अपना फिक्शन भी कवर करेंगे, ड्रामा भी कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कवर करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स आपके इस टेक्निक पे डिक्शनरी के थ्रू फर्दर जाएं, अंडरस्टैंड करें, डीपर अंडरस्टैंडिंग करें चीजों की, और सारा सब्जेक्ट आपके सामने रिवील हो जाएगा। इस प्रिपरेशन के साथ हो जाएगा 50% सक्सेस तो उसकी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सब्जेक्ट की नो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अब आपको सिलेबस भी कवर करना है इन डेप्थ, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा कि अब आपके पास टाइम है थोड़ा, मे बी यू विल गेट 2 months और 1.5 months एट द मोस्ट, या ज्यादा प्रोलॉग हो गया तो 2.5 महीने, नॉट मोर देन दैट। तो इस ब्रीफ पीरियड में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए? सिंपल रेसिपी है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, एज सिंपल एज इट इज। जो आपका टोटल सिलेबस है वो एवरीथिंग है, उस सारे की समथिंग समथिंग आपको आनी चाहिए। यानी कि जो वर्क, जो पोएम, जो नॉवल या जो अगर आपने नहीं पढ़ा उसकी ब्रीफ एमसीक्यूज निकाल लें 10-15 के करीब, कि वो ऑथर फला साल में पैदा हुआ था, डेथ फला साल में हुई थी, ही हैज रिटन सर्टेन वर्क्स, उसकी वजह शोहरत क्या है, उसके फला नॉवल का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, थीम क्या है, कब पब्लिश हुआ था, कौन सी सेंचुरी से था, रोमांटिक था, क्लासेस था, 10-15 एमसीक्यूज बना के आप रेडी कर लें। बाकी सिलेबस में से आप 50 to 60% वर्ड्स को उठाएं और उसमें क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल आपने ड्रामा उठाया है तो मेजर ड्रामेटिस्ट को उठाना मत भूलिए, कि आप शेक्सपियर ना उठाएं और बाकी ड्रामेटिस्ट उठाएं। शेक्सपियर मैंने नहीं पढ़ा डिटेल में, बाकी मुझे गिरफ्तार होगा कि शेक्सपियर कैसे छोड़ दिया, तो आप मेजर ड्रामेटिस्ट उठाएंगे, माइनर को जो कम फेमस है या रिलेटिवली कम पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनकी समथिंग इन पे फुल ग्रिप होनी चाहिए आपको। उसके लिए आप क्रिटिकल स्टडीज पढ़ें, नोट्स हासिल करें, यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जबरदस्त वेस्ट की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के। आप जरूरी है कि उर्दू के लेक्चर्स आप फॉलो करें, पाकिस्तानी और इंडियन टीचर्स के वेस्ट की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, कोर्सेरा पर कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बेस्ट गूगल पे बेहतरीन मटेरियल पीडीएफ में पड़ा हुआ है, क्लिफ नोट्स हैं, दूसरे नोट्स हैं, कहीं से भी आप रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट का दौर है। सो उन पे फुल ग्रिप आपकी होनी चाहिए। तो फिर जब आप ऑफर करेंगे कि जी ये 6 ड्रामा मैंने फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ सिलेबस में क्लास में पढ़े हैं, तो फिर उसमें आपको अच्छे तरीके से मुतमईन करना है एग्जामिनर को। वो फिर इन डेप्थ एक नॉवल उठाएगा या ड्रामा उठाएगा या पोएम उठाएगा और फिर आपको खंगालेगा, एंड देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि 50-60% अच्छा कवर किया है, पर ठीक से कवर किया है। दैट विल बी द रेसिपी। तो उससे ये मैसेज चला जाता है कि अच्छा जो उठाया है बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, तो मीन जो अभी नहीं किया तो बाद में कवर कर सकता है। ही नोज द टेक्निक, ही हैज द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, तो कर सकता है। और बाकियों के बारे में भी आपको बेसिक आती है। तो ये होगी आपकी सब्जेक्ट की अप्रोच, ये क्या होनी चाहिए। वाइल इंटरव्यू, अब ये तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चेक करेगा, जो 3 लोग बैठे होंगे, एक चेयरमैन कमेटी का, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट। तो ये चीज चेक करना तो डोमेन है प्राइमरीली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, उसने चेक कर लिया, ओके कर दिया, आपको पास भी कर दिया, पर आपको अप्रूवल और मार्क्स चाहिए 2 और लोगों के भी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी के भी और साइकोलॉजिस्ट के भी। चेयरमैन ऑफ द कमेटी आपका ओवरऑल एप्टीट्यूड चेक करता है कि कितना इंटेलिजेंट बंदा है, अलर्ट कितना है, मेंटल
अलर्टनेस कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है, अपीयरेंस कैसी है, फिट फॉर दिस जॉब है कि नहीं है। आपको वहां पे वो, अगर आप लेक्चरर इन इंग्लिश के लिए गए हुए हैं तो वहां पे इंजीनियर नहीं ढूंढेगा, रिसोर्स मैनेजर नहीं ढूंढेगा। ही इज बेसिकली, और दे आर बेसिकली फाइंडिंग अ टीचर इन यू, कि इसने जाके क्लासरूम एनवायरनमेंट में टीच करना है। तो कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, खुद को प्रेजेंट कैसे करता है, एक्सप्रेस कर पा रहा है खुद को कि नहीं कर पा रहा, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ओवरऑल देखेगा कि ये फिट इन, क्योंकि सब्जेक्ट का उसको पता नहीं है, मे भी उसका अपना सब्जेक्ट कोई और हो, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने चेक कर लिया। ओवरऑल आपकी सुटेबिलिटी चेक करेगा आपका चेयरमैन, और वो इतना एक्सपीरियंस बंदा होता है कि वो इतने इंटरव्यूज ले चुका होता है कि थोड़ी देर वो चेक कर लेता है कि वेदर ही सुटेबल और नॉट। एंड देन थर्ड पार्ट आ जाता है आपका साइकोलॉजिस्ट का। उसकी डोमेन डिफरेंट है, उसकी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। वो आपकी मेंटल हेल्थ चेक करता है, यदि ऑब्सेस्ड बंदा तो नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स में मारा हुआ शख्स तो नहीं है, कोई शदीद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बंदा तो नहीं है, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बंदा तो नहीं है, कोई शदीद नार्सिसिज्म तो नहीं है, नर्गिसियत जिसे हम कहते हैं, शदीद कैफियत थोड़ी थोड़ी सब में होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है, आइडियल कैंडिडेट कोई नहीं होता, पर किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं है प्राइमरीली। ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर नर्वस तो नहीं है, कुछ कैंडिडेट होते हैं पेन को मुसलसल घुमाते रहते हैं हाथ में, या उनकी टांग हिल रही होती है, या बटन के साथ दे स्टार्ट टू मूव लाइक दैट, ये या उनका मुंह खुश्क हो जाता है, रेडिश हो जाता है, और बिहेवियर उनका बहुत ही ऑब्स्क्योर किस्म का अनकैनी हो जाता है। इन सर्टेन केसेस मीन ये एक्सट्रीम लेवल है। ये बंदा फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट में जहां 50-60 स्टूडेंट बैठे हो, फेस पब्लिक को नहीं कर सकेगा, यहाँ 3 में ही प्रेशराइज हो गया है। हल्का प्रेशर नेचुरल है, वो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो हर कैंडिडेट आएगा, उसकी कैरियर दांव पे लगा हुआ, उसको सीट चाहिए, लिहाजा अंडर स्ट्रेस थोड़ा बहुत है, उसको वो नॉर्मलाइज करने के लिए चंद फ्रेंडली सवाल भी, जिसे हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग करते हैं। जो चीजें उन्हें पता होती हैं फिर भी वो पूछते हैं कि जी आप कहाँ से, आपका नाम क्या है, हालांकि शीट में सारा लिखा होता है और आप कौन सी सिटी से हैं वो भी लिखा होता है, बट दे डू आस्क कि आपको रिलैक्स करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए और एनवायरनमेंट से फ्रेंडली बनाने के लिए वो पूछते हैं आपसे। देन सेंट्रल लेवल की स्ट्रेस गुड थिंग है, आपको अलर्ट और एक्टिव रखती है, जिसे कहते हैं बेनिफिशियल स्ट्रेस। और दूसरी होती है हार्मफुल स्ट्रेस, जो कि आपकी एड्रेनलिन रश को बढ़ा देती है। ब्लड में आपके एड्रेनलिन, ब्रेन में खतरा महसूस होता है कि हर चीज दांव पे लग गई, घरी नौकरी, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, घर वाले ताने देंगे, दोस्त क्या। These are the peer pressures and family pressures. They do exist and they do influence you at that time. उस वक्त आप फिर अंडर परफॉर्म करके आते हैं इंटरव्यू में। ओवर परफॉर्म कोई नहीं कर सकता, अपनी जो लेवल की एग्जिस्टिंग जो उसे खुदा ने दी है उसे ऊपर तो वो जादू नहीं कर सकता मैजिक, बट जितना है उतना तो प्रेजेंट करके आए या उसे 10% कम करके आए। ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, एड्रेनलिन रश की वजह से ब्लड में आपकी पल्पिटेशन तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेचुरली ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है वो स्लो हो जाता है। सिर्फ जो आपका लिटिल पार्ट है सर्वाइवल वाला, फाइट और फ्लाइट वाला, वो काम कर रहा होता है जो एनिमल्स में करता है, और एनर्जी लॉट ऑफ ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, तो आप कि कान लाल हो जाता है, सुनाई नहीं देता, फेस आपका रेड, और आवाज लगता है कि बहुत दूर से कहीं से आ रही है और फुल सुनाई नहीं देती। फिर आपकी मेंटल अलर्टनेस, एक्टिव आंसरिंग, अवेयरनेस, सवाल एग्जैक्टली है क्या, जवाब देना क्या है टू द पॉइंट, ये सब स्किल्स धरी की धरी रह जाती हैं। एक शदीद वहशत की कैफियत एड्रेनलिन की वजह से और आपके फियर फैक्टर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस एकदम से, और एग्जामिनर को पता नहीं चलता, उसके पास था वो 15-20 मिनट की गेम है, उसमें जो आपने प्रेजेंट किया है खुद को, उसे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसने तो वहां ऑब्जर्व करना, और वहां आपकी गेम आपके हार्मोन्स खराब कर देते हैं आपकी थिंकिंग की वजह से। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट थिंग। उसके लिए आप थिंकिंग करें, मेंटल बैकअप है, कुछ खुदा पे यकीन रखें, कुछ किसी को आप जवाब दे नहीं है, इट इज योर लाइफ और आपने खुद बसर करनी है, सक्सेस भी आपकी है, फेलियर भी आपका है, और यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी इन द सोसाइटी और एनीवेयर एल्स। दूसरों की जिंदगी मत जिए,
कि बकौल शायरा की जिंदगी मेरी थी मगर उसे बसर उसने किया, अपनी जिंदगी खुद बसर करें और अपनी सक्सेस भी आपकी है, फेलियर भी आपकी। ये आपका माइंडसेट, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, तो वो आपका काफी बोझ उतर जाता है। कोशिश आपके हाथ में है, रिजल्ट खुदा के हाथ में है। जब आप रिजल्ट के लिए परेशान होते हैं कि मेरे हाथ में है, तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाती है, तो आपका इंटरव्यू खराब होना शुरू होता है। तो लिहाजा इस चीज को आप साइड पे छोड़ दें। फिर अगर आप रिलेटिवली नॉर्मल है, अलर्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट देखता है कि ये नॉर्मल की कैटेगरी में है। फिर वो देखता है कि अच्छा कितना अलर्ट है, एवरेज है, अबव एवरेज है और बिलो एवरेज है। अबव एवरेज के ए मार्क्स हैं, बिलो एवरेज की बी और बिलो एवरेज सिर्फ बी। वो मार्किंग करते जाते हैं, शीट्स सबके पास होती हैं। ऐसे नहीं है इंटरव्यू कि आपकी एक अदा पसंद आ गई, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है और आपको पास कर दिया, फला चीज बहुत अच्छी है और ओवरऑल लमसम मार्क्स आपको मिल गए। इट्स नॉट लाइक दैट। पूरा ब्रेकअप होता है, डिमार्केशन होती है मार्क्स की, हर एस्पेक्ट की, हर कैटेगरी की। तीनों एग्जामिनर के पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो उसमें लिखते जाते हैं और फिर फाइनल ओवरऑल रिजल्ट कंपाइल होता है तीनों का, और आपकी फिर ग्रेडिंग उस हवाले से होगी। तो किसी एक एस्पेक्ट में आप गुड है तो वहां आपने मैक्सिमम भी ले लिया है, वहां की मार्क्स दूसरे एस्पेक्ट को कवर नहीं करेंगे, वहां से आपने अलग स्कोर लेना है, आप जीरो नहीं छोड़ सकते वहां। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इंटेलिजेंस, अलर्टनेस वगैरह ये सब ओके हो गया। अब वैसे टीचर आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। शायद रिसर्चर के लिए ना हो, शायद पीएचडी स्कॉलर के लिए ना हो, जो टेबल पे बैठ के लिखना है, पढ़ना है, बंदे से ताल्लुक नहीं है। टीचर ने क्लासरूम में जाके डिलीवर करना है, आइडियाज प्रोफेस करने हैं, लेक्चर इन करना है, एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए अगर उसकी स्पीच क्लियर नहीं है, वाज़ह नहीं है, अगले को समझ में नहीं आता, ईदर ही और शी इज टू फास्ट और टू स्लो, टू लो और टू हाई, हर सूरत में गड़बड़ है। या मम्बलिंग है, तो टीचर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्लासरूम में बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या कह रहा है। हालांकि टीचर बेहतरीन होशियार हो सकता है, एकेडमिकली साउंड हो सकता है, स्पीच क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर एक्सप्रेशन, पेश चीजों को कैसे करता है, आर्ग्यूमेंट कैसे पुट करता है, आर्ग्यूमेंट डिफेंड कैसे करता है, राइटली लर्न करता है राइट टाइम पे, खामखा बहस में नहीं उलझता। जब फील हो कि यहाँ पे मिस्टेकन था आप एक्सेप्ट करे, और जहां फील हो कि मैं सही हूं और एग्जामिनर गलत है, तो वहां आर्ग्यूमेंट के थ्रू लॉजिकली डिफेंड करे। ये चीज उसके एक्सप्रेशन में आनी चाहिए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो। ये चीजें भी चेक करता है वो, जो कि टीचर के लिए जरूरी है, मे बी इंजीनियर के लिए ना हो, किसी और डॉक्टर के लिए ना हो, किसी और चीज के लिए ना हो। तो ये एप्टीट्यूड भी साइकोलॉजिस्ट भी आपका चेक करेगा, ये एप्टीट्यूड इंप्रेशन आपका चेयरमैन ऑफ द कमेटी पड़ेगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी गो के सब्जेक्ट के लिए बैठा हुआ है, पर इन सारे इन्फ्लुएंसेस से बच नहीं सकता, उस पर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है ओवरऑल, तो उसकी मार्किंग थोड़ी जरा डिफरेंट हो जाती है कि ओवरऑल भी अच्छा है, क्योंकि उसकी डोमेन नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है। पर जनरल सूटेबिलिटी है, अलर्टनेस और उसकी एप्टीट्यूड, उनको भी। फिर इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट रहे, जो चीज नहीं आती वहां एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भूल गए वरना आपको आ रहा था पहले, और इधर उधर सोचना शुरू करें। वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि वो सेकंडों में जान जाते हैं कि ये फनकारी कर रहे हैं और आपको वो चीज नहीं आ रही। सो डोंट प्रिटेंड, जस्ट सिंपली से सॉरी, आई हैवंट रेड दैट थिंग और आई हैवंट गॉन थ्रू दैट थिंग। और पर उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, फगर से सॉरी नहीं कर सकते आप। सॉरी कहेंगे पोलाइटनेस है कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी लैकिंग है कि आपने वो कवर नहीं किया, पोलाइटली आप सॉरी करते। और जो चीज आती है तो उसको आप एक्सप्लेन करें इन ब्रीफ टू द पॉइंट। ब्रीफ और टू द पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासरूम टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रीफ और टू द पॉइंट नहीं है अपने सब्जेक्ट में, तो आपकी टीचिंग स्किल में कमी है। और कभी कभी फिर एक और एस्पेक्ट कवर करता चलूं, जस्ट केम इनटू माय माइंड, क्योंकि इंटरव्यू एक्सपेक्ट था, डेमो भी होता है सर्टेन केसेस में, कि जी कहते हैं 5-10 मिनट की टीचिंग करके देखा है, स्मार्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड सामने पड़ा होता है, और वो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि 2-3 टॉपिक्स आप अपने बना के जाएं अपनी तरफ से घर से, 5-10 मिनट के, नॉट मोर देन दैट। वो आप फुल टाइम क्लास टीचिंग नहीं है,
छोटा सा डेमो बना के जाएं। लेकिन कहाँ से बनाएं? अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हैं, ग्रामर में अच्छे हैं, तो वहां से डेमो बना के जाएं। लिटरेचर आपका फोर्टे है, स्ट्रांग पॉइंट है, तो लिटरेचर में से कोई टॉपिक ले और उसका डेमो बनाएं, एक्सप्रेस करें। और कमेटी मेंबर्स को एज ए स्टूडेंट आप ट्रीट करेंगे और आपकी वो बेसिक टर्न CRT मेथड, अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो कम्युनिकेटिव रहे, उसमें इंटरेक्शन रखें, ऑडियंस को इन्वॉल्व करें, आई कांटेक्ट रखें, बोर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल करें, की टर्म्स वहां पर लिखें टॉपिक की, फिर ऑडियंस को सवाल जवाब में इंगेज करें और चीजें थोड़ी एक्सप्लेन करें। फ्यू मिनट्स में वो समझ जाएंगे कि आपके पास टीचिंग स्किल है, उतना ही वो वही आपको स्टॉप कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको कह रहे हैं कि जो आप प्रिपेयर करके आए ना, वो तो हो सकता है आपने रटा लगाया हो इस टॉपिक पे आपका है, तो वो टॉपिक अगर आपको अच्छा आता है तो उस पर आप डेमो दें। अगर आपको थोड़ा भी फील होता है कि तो मुझे रफ आइडिया है, तो आप शुरू ना हो जाए, देन आप उन्हें क्या कहेंगे, कैन आई हैव अनदर टॉपिक, मे यू सजेस्ट अनदर टॉपिक, फिर उनसे टॉपिक चेंज करवा के जो आपको आता हो उस पर आप डेमो दें। यानी कि आपका वाला नहीं था, है उन्हीं का, पर चेंज टॉपिक, वो डेमो आपका अच्छा हो जाएगा। सर्टेन थिंग्स वो करते हैं चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने राइट आंसर दिया किसी चीज का, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपसे डिसएग्री करता है, नो। वो देखता है मेंबर को, तो मेंबर भी करता है नो, साइकोलॉजिस्ट भी करता है नो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 बंदे बैठे हैं मुझसे सीनियर और वो तीनों ही कर रहे हैं नो, और मेरे ख्याल से तो मैंने ऐसे पढ़ा था। अब अगर आप प्रीटी श्योर हैं और आपने अच्छा पढ़ा हुआ है और कन्विक्शन के साथ है, तो आप करते हैं तीनों के नो करने के बावजूद यस, और आप लॉजिक देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, रेफरेंस देते हैं, फला जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, फला डिक्शनरी में ऐसे है, लेकिन जी ऐसे है। स्टैंड करना अपने राइटफुल टॉपिक पे, राइटफुल आंसर पे नेसेसरी है। मेजॉरिटी को नहीं देखेंगे कि उन्होंने नो कर दिया तो आप भी गिव अप कर दें, वो आपकी नेगेटिव, वो डेलिबरेटली करता है। कभी कभी ये होता है कि वो आपको, आप आंसर देते हैं और आप मिस्टेकन होते हैं, आपका आंसर रॉन्ग होता है। वहां पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो टॉपिक का पता है या चेयरमैन को, वो आपको हल्की सी टीचिंग करता है वहां पे 1.5-2 मिनट की, कि नहीं देखें इसमें ये लॉजिक है, ये ज्यादा सही नहीं है। तो वहां पे आपको फोकस होना चाहिए, सेंसेस होना चाहिए कि इनकी बात में वजन है, देयर इज अ लॉजिक, और मैं वाकई गलती पर हूं, तो वहां पे राइट टाइम पे सॉरी कहना चाहिए, मैं यू आर राइट, आई वॉज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और अगर आप अड़ गए कि जमी जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद, यदि आंसर दे दिया तो दे दिया, आप अलग है इससे, तो फिर ये एक रॉन्ग सेट ऑफ माइंड है, मीन्स कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई सिखाना चाह रहा है, टीच करना चाह रहा है और उसकी बात में वजन है, तो आप अपनी गलत बात को स्टिक कर रहे हैं और उसकी राइट बात को नहीं सुन रहे हैं। सो यहां पर हम उसको एंड कर रहे हैं। वो तो बहुत और भी कुछ सवाल आ सकते हैं, कुछ पहलू में भी रह गए हों, तो आई विल रिक्वेस्ट नजीर साहब टू आस्क क्वेश्चंस। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कम्प्रिहेंसिव ब्रीफ किया इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को। 1-2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करें लेक्चरशिप इन इंग्लिश का। तो इंग्लिश में 2 चीज़ें आती है, एक होती है लिंग्विस्टिक, एक होता है लिटरेचर। थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्क्राइब कर दें कि मैंने ब्रीफली लिटरेचर की स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को, कीपिंग इन माय ओन स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ एमए इंग्लिश प्रीवियस एंड फाइनल होती है, वो सिर्फ लिटरेचर में होती है। लतीफ साहब अगर आप बीएस इंग्लिश रेगुलर करेंगे तो वहां पे आपको लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ाएंगे, या सेंट यूनिवर्सिटी से या कराची यूनिवर्सिटी से, या फॉर दैट मैटर बाहर इन द करेंट यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी। तो आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि वो उसमें लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स भी साथ में रख देते हैं, पढ़ाते हैं। तो लिहाजा वो भी रिटन में भी थोड़े बहुत सवाल आए थे और इंटरव्यू में भी आएंगे। पर जिन्होंने प्योरली लिटरेचर में मास्टर्स किया है उनसे लिंग्विस्टिक्स नहीं पूछी जाएगी, उनसे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है। ऑलरेडी वो हार्डशिप डील करके आए हैं, रिटन में उस पार्ट को फेस करके आए हैं, थोड़े बहुत टर्म्स को हैंडल करके। पर अब इंटरव्यू में जाहिर बात है कि उन पे फोकस नहीं होगा, तो इसको इसलिए फेल कर रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स के आंसर नहीं दे रहा, भाई उसकी डिग्री नहीं है उसमें, या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आंसर नहीं दे रहा है, ईएलटी का इसको पता नहीं है, तो उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, उसका फोकस लिटरेचर ही होगा। हाँ, अलबत्ता those students who have done their masters in both linguistics and literature,
तो उनसे तो ऑब्वियसली व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, जैसे हमने व्हाट इज लिटरेचर, तो सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, डिक्शनरी में देखेंगे तो कहेगा जी कि साइको लिंग्विस्टिक्स भी होती है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी होती है, देन सिमेंटिक्स भी होती है, देन डिस्कोर्स एनालिसिस भी होता है, एंड देन दिस थिंग एंड ब्ला ब्ला, जितनी नेटिग्रिटीज में। फिर व्हाट इज लैंग्वेज, तो फिर आप लैंग्वेज में जाएंगे कि इसको लैंग्वेज कहता है, फिर पिजन क्या है, फिर क्रियोल क्या है, एंड एल्बन क्या होती है, टू क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या होती है, फर्क क्या है, डायलेक्ट क्या है, इस किस्म के सवाल। स्ट्रेटेजी सेम होगी जो लिटरेचर में थी, वही आप लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक्स में और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी चेक की जाएगी, उसी तरीके से टर्म में से टर्म्स आप निकालेंगे और वैसे ही आप कोर्स को कवर करेंगे। अब बता एक और एलिमेंट जो कि पहले मैं मिस कर दिया था कि चूंकि ये एमए इंग्लिश लेक्चरर इन इंग्लिश है, तो लिहाजा इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। सारा इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा इंग्लिश में, नीदर इन सिंधी नॉर इन उर्दू, नीदर इन सिंधी नॉर इन उर्दू और एनी अदर लोकल लैंग्वेज। सो इंग्लिश आपकी ओरल इंग्लिश, लिसनिंग एंड स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग वाला पार्ट तो आप करके आ गए, रीडिंग एंड राइटिंग वाला वो आपने क्वालिफाई कर दिया, वहां पर ब्रीफ टाइम में आपकी ये दोनों स्किल्स लिसनिंग और स्पीकिंग काम आएंगे। तो जिनकी वो फोर्टे है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ज्यादा स्कोर ले जाते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे स्टूडेंट जो कि नोट्स बड़े अच्छे लिख लेते हैं, आंसर्स एग्जामिनेशन राइटिंग में बड़े अच्छे होते हैं, पर ओरल कैपेबिलिटी नहीं होती, लिहाजा वहां खुद को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकते थोड़े टाइम। तो लैंग्वेज का ये वाला एस्पेक्ट पे आप काम करें, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर की और वोकैबुलरी की और सर्टेन अदर एस्पेक्ट की, ये आपको आनी चाहिए। ये ना एमए इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई जाती है, न ये लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, न अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाई जाती है, पर इन तीनों के लिए एसेंशियली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो आपने अलग से सीखनी होती है। तो दैट्स व्हाई लैंग्वेज ऑल्सो मैटर करती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप लिटरेचर में इतना एक्सेल नहीं भी कर पा रहे, इतने अच्छी शानदार कैंडिडेट नहीं है, गुजारा है, पर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे हमें दोनों किस्म के टीचर चाहिए कॉलेजेस में, जो लैंग्वेज भी पढ़ा है, जो लिटरेचर भी पढ़ा है। तो वो दोनों को माइंड में रखते हैं कि एक, लेकिन जीरो कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज भी अप टू मार्क हो, गुजारा हो जाए, लिटरेचर में अच्छा है तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है, लिटरेचर में गुजारा है, लैंग्वेज में बहुत अच्छा है तो वो भी सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज बॉटम पे नहीं होनी चाहिए। कोई और सवाल? थैंक यू वेरी मच सर। दूसरी चीज़ में सुनने में आ रहा था कुछ कि अभी जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे वो इन कैमरा होगी, यानी कि आपकी जो इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी वो उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग होगी, तो क्या इस बात में कुछ सदाकत है, आप समझते हैं? हाँ, ये पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं सिंपल सर्विस कमीशन के हवाले से, लोग लिटिगेशन में भी गए हैं, कोर्ट्स में भी गए इस हवाले से, और उनके डिसीजंस को भी चैलेंज किया गया है। तो लिहाजा ये बात जब कोर्ट में लास्ट टाइम गई थी तो फिर ये कोर्ट की वर्डिक्ट का एक पार्ट था, इसमें मेमोरीज नॉट डिसीविंग मी, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आई रेड समवेयर इन द कोर्ट जजमेंट कि इन कैमरा सेशंस होंगे ताकि उसकी न्यूट्रलिटी और पार्शियलिटी को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि रिटन में तो चले रिजल्ट होता है, शीट होती है, OMR शीट है, ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी मेंटेन की जा सकती है सर्टेन लेवल पे, लेकिन इंटरव्यू में गेम उलट दे, अगर कोई अंदर इंटरव्यूअर या एग्जामिनर किसी का पासा पलट दे कि ये बोला था, ये नहीं बोला था, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रोबेबली दैट रीजन की वजह से कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप उस सेशन को, इंटरव्यू के सेशन को रिकॉर्ड में रखें इंटरव्यू के दौरान, कि अगर कोई कल को कोई कोर्ट में जाए, किसी और फोरम पे जाना चाहे, तो कोई प्रूफ होना चाहिए कि अंदर वो बोला भी था कि नहीं बोला था, जब बाहर आके झूठ बोल रहा है कैंडिडेट या कहीं और गड़बड़ है। सो उस वजह से चांसेस हैं कि मेरिट होने के इस मर्तबा, और प्लस डिटेल इंटरव्यू होने के। पास्ट में वरना नीलामगर टाइप इंटरव्यू होते रहे हैं जो कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, और वो प्रॉपर वे ऑफ इंटरव्यू भी नहीं है, फेडरल वाले भी उसको नहीं फॉलो करते। सिंपल सर्विस कमीशन भी जब भी अच्छे स्टैंडर्ड इंटरव्यूज लेती है वो डिटेल इंटरव्यूज होता है, वो MCQs टाइप नीलामगर नहीं होता है। तो इस मर्तबा में चांसेस यही है कि अच्छा डिटेल इंटरव्यू होगा। होप फॉर द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा सेशन कंडक्ट करने के लिए, इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए। जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो कि थ्रू आउट सिंध आपको अभी देख रहे हैं, हमको वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बताई लेक्चर इन इंग्लिश के इंटरव्यू के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।